الیکشن کمیشن کی ویڈیو اس کے پاس ہے, ہمارے ججوں کی ویڈیو اس کے پاس ہے, ہمارے آرمی والوں کی ویڈیو اس کے پاس ہے. وہ ویڈیو بنا بنا کے بلیک میل کرتی ہے. کیونکہ بندہ اس موقع پہ ان سے کہتا ہے لخ لعنت ہے تمہارے خون پہ نا. یہ کس کو کہہ رہی ہیں, مریم کو یا اس کے ابا کو؟ مریم اور مریم کے ابا دونوں کو. ابا نے کیک کاٹا اور بیٹی نے چاچا جو وزیر اعظم ہے وہ سیکورٹی اس نے دینی تھی, اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے. اس کا چاچا وزیر اعظم کوئی نہیں ہے. اس کو کچھ 4-5 جو بکے ہوئے لوگ ہیں پاکستان کے اس کو وزیر اعظم مانتے ہیں. ہمارا وزیر اعظم عمران احمد خان نے آج وہ جو کہا تھا 2000 روپے میں اپنے پاس سے دے رہی ہوں. بھلا اسے پوچھے تو جو ماں کے پیمپر, تیری ماں جو پیمپر تبدیل کرتی تھی نواز شریف کی ماں کے, تو اس کے پیسے دے رہی تھی 2000. وہ 12,000 روپے دے رہا تھا نا. چیز نہیں ہے کیونکہ وہ حرام کے پیسوں پہ پلی ہوئی نسل ہے. ٹھیک ہے, ان کے باپ نے پاکستان کو لوٹا اور ان کو پالا. وہ 2 بیٹے پالے جنہوں نے ماں پیک کرا کے بھیج دی, اس کے جنازے پہ نہیں آئے نا. تو آپ یہ دے رہے ہو کہ بیٹا جہاں پہ بھی ہو اس کا پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ماں کے جنازے پہ پہنچوں نا. وہ حق حلال کے پلے ہوئے ہوتے نا تو ماں کے جنازے کے ساتھ آتے. تو اس سے گھٹیا عورت میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی. اچھا دیکھیں, جو ایک کلیجے چبانے والی عورت, ہندا, اس عورت نہیں ہے, یہ ہندا ہے. یہ جو ہمارے ہڈ حرام بیٹھے ہیں جو پاکستان کے ٹیکس کے پیسوں سے بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں, عشاشیاں لے رہے ہیں, گاڑیاں لے رہے ہیں, پٹرول لے رہے ہیں, تو قانون یہ جو آ جاتے ہیں پیچھے سے عوام کے پیسے لوٹ کے MP یہ بن جاتے ہیں. اور انہوں نے جو اسمبلی میں قانون پاس کرنا ہوتا ہے, جب یہ ایسے کرمنل آپ بٹھائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. آپ میاں والی سے یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ میاں عمران خان کے جب سے جلسے شروع ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ میں ویسے بھی لاہور میں رہتی ہوں نا. میں ہوں میاں والی سے نہیں, آگے گاؤں ہے عیسیٰ خیل, وہاں سے ہوں. اس کے بھی آگے گاؤں ہے عیسیٰ خیل سے بھی آگے گاؤں ہے, میں وہاں سے ہوں نا. اور عمران خان کے ہر جلسے پہ ہوتی ہوں الحمدللہ. ہمیشہ کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں. وہ تو پھر آپ کو گولی مار دیں گے اگر آپ ڈٹ کے کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے تو. کھانے کے لیے تیار ہے ایک گولی. یہ میں کہتے ہیں لائن لگا دیں گولیوں کی نا. اگر وہاں پہ کھڑی نہ رہوں, ہل بھی جاؤں نا, تو کہنا کسی نیازی کی بیٹی نہیں تھی نا. یہ رانا ثناءاللہ کسی بھول میں ہوگا نا کہ یہ ہمیں ڈرا دے گا نا. ڈرنا ہمارے نہ خون میں ہے اور نہ ہم نے ڈرنا سیکھا ہے نا. پہلے خون میں بھی نہیں ہے, دوسرا میں غازی کی بیٹی ہوں نا. ہم نے پہلے کہا تھا کہ عمران خان کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو دلیر ہوں گے نا. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا لیڈر حق پہ کھڑا ہے نا, ڈرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, باقی سارے لوگ سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہیں, آپ گراؤنڈ کے اندر آ کے بیٹھ گئی ہیں. کب سے کھڑی ہوئی تھی یا آپ تھک گئی ہیں؟ میں نا کافی دیر سے آئی ہوں. کافی دیر سے, جب پہلے تو رو کے برا حشر تھا. پہلے ارشد شریف کے لیے یعنی کہ کھانا نہیں کھایا گیا میرے سے. میں حلفاً کہہ رہی ہوں نا, میں نے بیٹی سے کہا کہ میرے سے کھانا نہیں کھایا جاتا نا. یعنی کہ یعنی کہ وہ اس کے لیے اس کے بچوں کے بارے میں سوچ کے نا, تو ہم نے پھر یہ سوچ لیا نا کہ یا اللہ ہم کیسے کرمنل لوگوں میں پاکستان ہے نا. ٹھیک ہے, ہمیں 70 سال سے پتہ ہے یہ قاتل لوگ ہیں نا, یہ چور ڈاکو لٹیرے لوگ ہیں نا. 70 سال سے آپ نے مجھے یاد کروایا. سب سے پہلے لیاقت علی خان کو گولی ماری گئی, اس کے بعد باقی لوگ بھی مارے گئے, پتہ نہیں کتنے وزیر اعظم مارے گئے, پھر بھٹو اس کا پورا خاندان مار دیا گیا, پھر بے نظیر کے بعد ارشد شریف اور بے نظیر کے درمیان میں کئی صحافی اٹھا کے لے گئے. SP کو اسلام آباد سے آن ڈیوٹی پروٹوکول کے ساتھ اٹھا کے چلے گئے. اب آخر میں اب جب تک ہم زندہ ہیں, خان صاحب کی باری انہوں نے لگا دی ہے, تو یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ جب تک ہماری عدلیہ دیکھیں, جب تک ہمارا انصاف کا سسٹم صحیح نہیں ہوگا نا, کچھ بھی صحیح نہیں ہو سکتا. تو یہ تو جو ہمارے عدلیہ کا نظام ہے یہ تو 1935 کا قانون ہے. آج جس کو بھی سزا ہوتی ہے وہ تاجرات ہند 1988, 1935, 1940 کے تحت ہوتی ہے. اب پاکستانی تو کوئی قانون نہیں بنے ہوئے, اور جو گوروں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہڈ حرام بیٹھے ہیں جو پاکستان کے ٹیکس کے پیسوں سے بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں, عشاشیاں لے رہے ہیں, گاڑیاں لے رہے ہیں, پٹرول لے رہے ہیں, تو قانون یہ جو آ جاتے ہیں پیچھے سے عوام کے پیسے لوٹ کے MP یہ بن جاتے ہیں. اور انہوں نے جو اسمبلی میں قانون پاس کرنا ہوتا ہے, جب یہ ایسے کرمنل آپ بٹھائیں گے, جیسے اب 150 سیٹیں تھیں عمران خان کی, 155 سیٹیں تھیں اور ان کی 80 سیٹیں تھیں, 80 والا اٹھا کے اسمبلی میں لے آئے, وزیر اعظم بنا دیا ہے, اور جو 150 سیٹوں والے اس کو اٹھا کے بعد
भेज दिया है ना, क्योंकि अवाम वोट देती है किसी को, ये आगे भेज देते हैं किसी को। जब तक हमारे चीफ जस्टिस, जो हमारा अदलिया का निज़ाम है, जो हमारे इंसाफ काजी है ना, जब तक ये नहीं सही होंगे या जब तक ये इंसाफ के फैसले नहीं करेंगे, यही लाकानूनियत रहेगी। ये ऐसे ही भुट्टो, ऐसे ही अयूब, ऐसे ही वकील, ऐसे ही सहाफ़ी, ऐसे ही अरशद शरीफ शहीद होते रहेंगे। अच्छा, हम तो सारे ऐसे शहीद होते रहेंगे, हमारे नसीब में शहादत लिखी हुई है। लेकिन मैंने सुना है मरीम नवाज को बहुत प्यार करती हैं, आपने उसको इंग्लैंड भेजा है, आपने उसको 70 लाख का कोट लेके दिया, आपने उसको 15 लाख का बैग लेके दिया, आपने उसको 10 लाख का जूता लेके दिया। आपको पता है आज मैं वैसे बहुत दुखी हूँ इमरान खान को, जो इन्होंने इमरान खान को जो गोली लगी है ना, वो मेरी फीलिंग है ना, सीधी दिल पे लगी है। ऐसा ही है, सीधी। मैं कहती हूँ हर पाकिस्तानी है ना, सबके दिल पे लगी होगी ना। मरियम नवाज, अब मैं औरत हूँ, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, अगर मैंने पहले वीडियो में अगर इसके कहने पे आऊँ ना, तो इससे घटिया औरत मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी। अच्छा देखिए, जो एक कलेजे चबाने वाली औरत, हिंदा, इस औरत नहीं है, ये हिंदा है, हिंदा, ठीक है। ये कलेजे चबाने वाली औरत है। ये लोगों के की वीडियो बना के ब्लैकमेल करके, हमारे इलेक्शन कमीशन की वीडियो उसके पास है, हमारे जजों की वीडियो उसके पास है, हमारे आर्मी वालों की वीडियो उसके पास है। वो वीडियो बना के ब्लैकमेल करती है, क्योंकि उसके खून में शामिल था, उसका दादा गुलों वाला, हारों वाला था ना, कि उनके खून में वही तरबियत होगी ना, वो वैसे ही वीडियो बनाने वाले काम करेगी ना। वो आप मरियम, उसका मैंने एक नवाज रखा है, जैसे डड्डू चार्जर का नाम मैंने रखा था ना, डड्डू चार्जर, इसको मैं कहती हूँ नवाज शरीफ की खच। नवाज शरीफ की खच, तो ये तो पंजाबी का लफ्ज है। हाँ। आप तो सराइकी और पश्तो बोलते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, वो पंजाबी, उनको पटवारियों को ज्यादा पंजाबी समझ आती है ना, तो मैं पटवारियों ਨੂੰ कहनी हूं जेडी नवाज शरीफ दी खच है ना, एनु का गलती है, खच गलती तो कोई फिर भी इंसान कहता है ना क्या मुझसे गलती हो गई। खच जो होती है ना, वो संभालने वाली चीज नहीं होती, वो खच ही है ना, ठीक है। उसने वीडियो बना के आर्मी को ब्लैकमेल कर, जजों को ब्लैकमेल कर, इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल कर, ये हाल पाकिस्तान का कर लिया है ना, ये हाल पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का कर लिया है ना। क्योंकि आज ये गुंडे क्रिमिनल लोग हमारी असम्बलियों में ना होते ना, आज इमरान खान को यूं गोलियां मारने की किसी की जुर्रत ना होती। ये सीधा ये पीडीएम वाले इन गोलियों के जिम्मेवार हैं, पूरी पीडीएम हो तो अच्छा जिम्मेवार तो हैं। लेकिन जब अरशद शरीफ को गोली लगी तो नवाज शरीफ लंदन में बैठ के केक काट रहा था, लेकिन वो कह रहा था कि दिवाली का केक है, और यहाँ कहा जा रही है अरशद शरीफ के मरने के ऊपर उन्होंने केक काटा। वैसे अब इमरान खान को गोली लगी है तो बीबी वहाँ पे क्या करेगी, मरियम बीबी? वो ना, ये उन्होंने आपको ये बताया है, पाकिस्तानी अवाम की आंखें खोल के उन्होंने दिखाई हैं कि वो वाकई इंडिया के रहने वाले, वो उनका इनके वो मुसलमान, मुझे नहीं लगता वो कहीं से है ना, कि अगर इधर अरशद शरीफ शहीद हो गया है और वो पकोड़े जैसा मुंह लेके, मुंह पे मास्क, नाक के नीचे मुंह बतख की तरह लगाया हुआ होता है, और वो बैठ के वहाँ पे दिवाली का केक काट रहा था ना, बंदा इस मौके पे इनसे कहता है लाख लानत है तुम्हारे खून पे ना। ये किसको कह रही हैं, मरियम को या उसके अब्बा को? मरियम और मरियम के अब्बा दोनों को। अब्बा ने केक काटा और बेटी ने चाचा जो वजीर आजम है, वो सिक्योरिटी उसने देनी थी, उसके लिए कोई तोहफा नहीं है। उसका चाचा वजीर आजम कोई नहीं है, उसको कुछ 4-5 जो बिके हुए लोग हैं पाकिस्तान के, उसको वजीर आजम मानते हैं। हमारा वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी है, जिसको हम कहते हैं हमारा वजीर आजम है। उस चवल शू पॉलिश को कौन वजीर आजम कहता है, उसको कौन मानता है? वो शू पॉलिश तो बाद में पहले करता होगा, अब तो डिग्गी में बैठता है। अभी डिग्गी है, डिग्गी के अलावा भी कुछ निकलेगा। वो बुर्का पहन के भी जाता रहा है, डिग्गी में जाता था ना, और बुर्का भी पहना हुआ होता था, कि फिर भी उसको इतना खौफ होता था कि मुझे डिग्गी में कोई देख ना लेना। उसकी फुफो रहती है जहाँ पे डिग्गी में छुप के जाता है, या कोई और है? उधर फुफो नहीं रहती, उधर हम क्या कहें ना। अब मैं मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, तो एक वक्त मुझे याद है मेरे नवाज शरीफ ने असम्बली में खड़ा होकर आर्मी के खिलाफ बात की थी, तो मेरे वालिद साहब मुझे ख्वाब में मिले थे और मुझे कहते हैं, मैं उदास हूँ ना, तो मैंने पूछा अबू क्यों, तो कहते हैं नवाज शरीफ ने अच्छा नहीं किया आर्मी के खिलाफ बोल के ना। लेकिन आर्मी ने अपनी इज्जत नहीं करवाई ना, आर्मी अपनी इज्जत करवाती। देखें, आर्मी हमारी अपनी है, उन्होंने जो, मेरी बात सुने, जो वर्दियां पहनी हुई हैं आपके मेरे इस अवाम के टैक्स से पहनी हुई हैं, जो गाड़ियों में बैठ के प्रोटोकॉल होते हैं वो हमारे टैक्स से है। हमारी है, लेकिन पूरी आर्मी नहीं, पूरी आर्मी नहीं, जो हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं, जो उधर शहीद हो रहे हैं, ये 2-3 लोग हैं, 2-3 लोग हैं। मैं पहले दिन से करी हूँ, सिर्फ 2-3 लोग हैं, सिर्फ 2। अब तो वो आजम सवाती ने भी बता दिया है ना, इनको इतनी शर्म नहीं आई कि आजम सवाती ने नाम लेके कहा है ना,
वो 2 बंदों को, वो 3 दिन हो गए चीफ जस्टिस को रो के कह रहा है ना कि इन्होंने मेरे साथ ये किया, इन्होंने मेरे साथ ये किया। चीफ जस्टिस भी अल्लाह ताला ने हमें वहाँ बेहतरीन दिया है, जो सुकून से सो रहा है। वो कहते हैं बस इज्जत से मैं पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसों से याशी कर रहा हूँ, मेरे लिए इतना काफ़ी है ना। उसने कोई सो मोटो नोटिस नहीं लिया ना, कोई इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया ना। चीफ जस्टिस साहब, आपको 100 मोटर्स लेनी चाहिए। आपने बीबी मरियम का नाम रखा था कुछ अर्सा पहले किसी धरने में, जलसे में, लॉन्ग मार्च में। मरियम का नहीं रखा था, डड्डू चार्जर का नाम रखा था। वो जो कह रही थी मरियम औरंगजेब नहीं, डड्डू चार्जर। वो औरंगजेब दफा करो, औरंगजेब पता नहीं कौन है, मेरा मुझे सिर्फ ये पता है वो डड्डू चार्जर है ना। डड्डू चार्जर ने वो जो कहा था 2000 रुपए मैं अपने पास से दे रही हूँ। भला उससे पूछे, तू जो माँ के पैम्पर, तेरी माँ जो पैम्पर तब्दील करती थी नवाज शरीफ की माँ के, तू उसके पैसे दे रही थी 2000। वो 12-12 हज़ार रुपया दे रहा था ना, वो कोई नहीं थी। ये आगे कह रही 2000 रुपए। मैंने से कहा था लाख लानत है डड्डू चार्जर तेरे पे ना, तेरे पे ना, एक बार नहीं 909 करोड़ बार तेरे पे लानत इसलिए है कि तू नवाज शरीफ जैसे गंदे और उस जैसी गंदी बेटी के कच के साथ खड़ी है और आके बकवास करती है और झूठ बोलती है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि खान साहब सर से लेके पाँव तक करप्ट आदमी है, 2 नंबर है, फराडी है, फितना है, घड़ी चोर है, ये है वो है, उसके लिए भी कुछ बोल रहे हैं। अब मरियम अखे वो सराइकी में एक मिसाल है, बोले। सराइकी में एक मिसाल है, पंजाबी में समझ आएगी, बोले। अखे छाजी तो छाजे परून भी उभरे छाजी तो छाजे परून भी उभरे जेड़े 906 ने। ये मरियम नवाज तुम्हारे लिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, छाजे तो छाजे परून भी उभरे जेड़े 906 किन। बीबी मरियम, आपके बहुत सारे रिपोर्टर, सपोर्टर, सहाफ़ी, लिफाफी सराइकी जानते हैं, आप उन्हें बुलाइएगा, ये तर्जमानी कीजिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको शायद थोड़ी सी अगर गैरत आए, शर्म आए, मुझे ऐसे अल्फाज कहते हुए शर्म आ रही है कि आपने ज़लील व ख्वार करके रख दिया हमारी पूरी मुल्क कौम को। उसमें गैरत शर्म नाम की चीज़ होती ना, तो जो उसने कारनामा फास्ट चलने का किया हुआ है वो पूरे पाकिस्तान को पता है ना, ठीक है। वो उस वक्त डूब के नहीं मरी तो बाकी वो किस वक्त डूब के मरेगी ना। शर्म या गैरत नाम की उनमें कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो हराम के पैसों पे पली हुई नस्ल है, ठीक है। उनके बाप ने पाकिस्तान को लूटा और इनको पाला। वो 2 बेटे पाले जिन्होंने माँ पैक करा के भेज दी, उसके जनाजे पे नहीं आए ना। तो आप ये दे रहे हो कि बेटा जहाँ पे भी हो उसका पूरी कोशिश होती है कि मैं माँ के जनाजे पे पहुँचूँ ना। वो हक हलाल के पल्ले हुए होते ना तो माँ के जनाजे के साथ आते, वो हराम के पल्ले हुए थे, माँ के जनाजे के साथ भी नहीं है, तो उनमें गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो आप उनसे ना डिमांड किया करें। आप कह रही हैं कि वो उन्होंने अपने माँ और बाप, दादा परदादा सारों को बारी बारी पैक करके भेजा, पार्सल किया। कभी मरियम बीबी जो है वो अरशद शरीफ को भी यही कह रही थी कि ये पैक होकर आया है। वही तो कह रही हूँ भाई, मरियम जैसी खाच, गंदे ज़हन की, गंदी सोच की औरत मैंने आज तक नहीं देखी। जो अरशद शरीफ के लिए दुश्मन भी रो रहे होंगे ना, फर्ज करो कि इंसानियत तो है ना, अल्लाह की कसम पागल हो रहा था बंदे को, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया ना। उसमें भी ये दिवालियां मना रही थी और अरशद शरीफ को कह रही थी पार्सल करके आया है, पार्सल करके तेरी माँ आई थी, तेरी दादी आई थी, तेरा दादा आया था। जो हराम के पैसों पे पली हुई नस्ल होती है वो ऐसे पार्सल करती है। अरशद शहीदों के शान और शौकत से आया था, उसके जाके आगे पाकिस्तानियों ने फूलों से और इस्तकबाल किया है ना, और उसको लेके आया है ना। तेरी जो भाई है ना हराम पे पल्ले हुए, उनकी माँ पार्सल होके आई है, दादा और दादी पार्सल होके आए, तेरे बाप ने भी देखा है, तूने भी देखा है और पूरे पाकिस्तान ने भी देखा है। जी आपका बहुत शुक्रिया। बाऊ जी का नाम जो है आज के बाद खाऊ जी है। पूरा मुल्क खा पी के वहाँ डिकार मारने के लिए बैठे हुए हैं। इधर आओ, अदालतें फेस करो, अवाम को फेस करो, और ये जो तुमने कत्ल व गारत का जो सिस्टम शुरू किया हुआ है इसको बंद करो और सच सुनने की हिम्मत रखो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इधर आए इंशाल्लाह, जीने नहीं, इधर आके तो देखें। इधर अभी ये पाकिस्तान आए ना, मैं अपने सारे बच्चों से कहती हूँ, ये सारे ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं ना, अल्लाह की कसम इनको पाकिस्तान में अब सड़कों पे चलने ना देना, ये आप लोगों का फर्ज बन गया है। आप ना इसको इस ज़हन में रख लें, ये जहाँ पे मिले ना इनको जूतियों से, पत्थरों से, वट्टों से, रोड़ों से, इनको पाकिस्तान में अब ये भूल जाएं कि इमरान खान पे गोलियां चलाने के बाद ये पाकिस्तान में आके दंदनाते फिरेंगे। मत सोचें ये बात आप। राना सनाउल्लाह, हिम्मत करो, अली अमीन गंडापुर के चैलेंज को पूरा करो। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।